गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में अपना सबसे बड़ा एआई एंड डेटा सेंटर हब कायम करने का ऐलान किया है। कंपनी आइंदा 5 वर्षों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। गूगल के सीईओ थॉमस कुरियन ने दिल्ली में इंडिया एआई विशाखापट्टनम में तामीर होने वाला यह मराकज अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह रियासत के लिए एक तारीखी दिन है। It is a part of a global network of AI centers in 12 different countries, but it is, as I said, the largest one that we will be building anywhere in the world outside the US. In addition to that, we're also pleased that we will be making Visakhapatnam a global connectivity hub. This is a very auspicious day and also very happy day for me, not only for me, for all of us. First of all, I have to thank Honorable Prime Minister. He has made it possible. After that, our Finance Minister, Her Excellency, she has done very well. Anyway, our IT Minister, he has done. When I mooted the idea, he was very positive. Google has to come to India. That is the attitude. And also our IT Minister, he also worked with you. All the way he came to your office. He spent so much of time. At that time he briefed me. After that we had a meeting. We thought we had to complete 12 months time. Now 1 month, 13 months we are able to clinch it. I am proud of you. From iTech City and IT promotion started in Hyderabad. That is late 90s. Today 2025 we are talking about data center and artificial intelligence. Really it is very inspiring. And also Visakhapatnam, at that time Hyderabad, now Visakhapatnam. Even Hyderabad I brought Microsoft at that time. First time Microsoft has come to Hyderabad. Today Google has come to Visakhapatnam. We are very happy. According to me, इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश ने कहा है कि रियासत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इनोवेशन के जरिए भारत की अगली बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की क़यादत के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से उन्होंने खिताब किया। नारा लोकेश ने इसे रियासत और मुल्क दोनों के लिए एक तारीखी संगमेल करार दिया। Data is the new oil, and data centers are the new refineries. At this juncture, I believe it's not about Andhra Pradesh playing an important role in India, but India playing an important role on the global landscape. And this is what excites us, and this is why the entire leadership is aligned in terms of executing this project at this scale. And as the HRD minister, now I think all the senior ministers have given me clear guidance that we have to skill up, and we have to embrace AI. We have to look at revamping our curriculum, getting our youngsters ready for the next wave of opportunities. India has been the beneficiary of the IT education in the past. We have seen the Y2K revolution transform cities like Hyderabad and Bangalore. And now we're going to see that AI revolution transforming the next wave of cities, if I may. And that's where education plays a very important role. And the Honorable Chief Minister has always understood it. That's why education and IT is under one minister. And the idea is to marry these two and ensure that these result in tangible outcomes in the field level.
The other part in the state of Andhra Pradesh is we have something called the real-time governance. This is where AI use cases are being executed, implemented for farmers, for daily wage seekers. How can we fundamentally transform their lives? How can we improve the quality of their life? How can we improve their income levels? So as the Honorable Chief Minister just stated, one family, one entrepreneur. And this is something we take to our heart. And if you know Andhra Pradesh, once we do take it, we will implement on it. So these are the kind of transformative changes that we can implement in Andhra Pradesh, and I'm sure these use cases can be used for India and the world. But I'll definitely lean on to Google to help us chart this journey. It's very important for you to also give us input, and that will enable us to get our youngsters ready for. दिल्ली में गूगल की जानिब से मुनक़िदा भारत AI शक्ति प्रोग्राम में मरकजी वज़रा अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारामन, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, IT वज़ीर नारा लोकेश और गूगल का क्लाउड के CEO थॉमस कोरेन शरीक हुए। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये पेशरफ्त रियासत की मैशियत और मुल्क के नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल की हकीकत है और डेटा तरक्की का नया ईंधन बन चुका है। You take any global company, Indian origin are the CEOs. That is our strength. Either Google or Microsoft or any other company. Now with that strength, AI is a reality in future. But we have to use effectively artificial intelligence. Data center is a reality. Data is a new oil for growth. With all these parameters, I'm thankful to Government of India they gave me opportunity to launch this project in Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Kurianji has announced just now 15 billion. Originally they announced 10 billion. Now he said 15 billion within 5 years' time. Time frame is fixed. Speed also you know very well. And also employment also in a big way. Direct, indirect and ancillary. So many people will come, that ecosystem. They are going to create so much of employment. Apart from employment, economy, there will be a big jump. That is what I am envisaging. There will be lot of impact in all walks of life. Either education, either health, agriculture, even construction, not one field. Every field there is an impact. Cost effectiveness and also timely decision making, speed of doing business, everything is going to come, and also decision making will be. दिल्ली में इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गूगल ने विशाखापट्टनम $15 अरब की सरमायाकारी के साथ AI हब और डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक आलमी कंपनियां अब भारत में अपना बुनियादी ढांचा कायम कर रही हैं, जिसके स्टार्टअप, तहकीक और नौजवानों को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आज गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर AI हब बनाने का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके विजन से, आपके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और AI हब में होगा। हम सब जानते हैं कि AI के कारण हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है। हम उस प्रभाव को कैसे लाभकारी बनाएं, कैसे हम जल्दी से जल्दी हमारे यूथ को, हमारे IT प्रोफेशनल्स को रीस्किल करें, अपस्किल करें, AI रेडी बनाएं, जिससे कि जो नई अपॉर्चुनिटीज आएगी विश्व में, उन सब अपॉर्चुनिटीज को भारत सबसे पहले ले। और जो IT में भारत ने एक अपनी बड़ी पहचान बनाई है विश्व में, वो पहचान AI वाले इस पीरियड में, AI वाले इस नए युग में
भारत की वो पहचान और वो स्ट्रेंथ और वो ताकत बनी रहे, मजबूत रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आए, डिजिटल इंफ्रा भारत में आए। इसीलिए आप जानते हैं एआई मिशन में कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी की गई और आज जो गूगल का 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, ये भी उसी एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। एक बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी हमारे रिसर्च के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने कहा कि विशाखापट्टनम में गूगल के 10 अरब डॉलर के डेटा सेंटर का ऐलान एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने इस कामयाबी का क्रेडिट वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया। उनके मुताबिक ये मनसूबा रियासत में 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगा और गवर्नेंस को नई रफ्तार देगा। Today is a historic day. I'm very happy that Google is announcing $10 billion data center in the state of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. This has been a work in progress for many months now, and especially the credit goes to our Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and the IT Minister, Sri Lokesh Anna Garu, who from the stage of inception followed up with the central government and under the guidance and support of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who himself wanted this kind of infrastructure to come into the country, has supported a lot in the central government, especially Finance Minister, IT Minister from the Government of India. They all extended their support, and today what would have seemed to be an impossible task of having this kind of a capacity data center in the country is becoming a reality today. And what we are going to witness here today, $10 billion AI data center investment in the country, this event could have happened anywhere in the world. This kind of investment could have happened in any country in the world. But why India, why Andhra Pradesh, why Visakhapatnam is what we all have to think about. This is only possible because of our Prime Minister Narendra Modi ji and the leadership of our Chief Minister Chandrababu Naidu ji. And Chandrababu Naidu ji has proved again that why he is called the IT man, IT revolution of the country. He has done it many years ago. In fact, in 95, when he was trying to build up Hyderabad as the IT center of the country, he has convinced Microsoft to come to India and set up its plant, the first one which was away from Seattle. And now today, this is Google's biggest investment outside their headquarters. And again, it has come to the state of Andhra Pradesh. And this is how our Chief Minister has created brand Andhra Pradesh. He has created that confidence for investments which are coming into Andhra Pradesh. This is a great revolution, I believe. And from today, we are going to see that what the state of Andhra Pradesh is going to be before the announcement of Google and after the announcement of Google, because we feel this $10 billion investment is going to create jobs. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर नायडू ने मोदी को करनूल में मुनक़िदा होने वाले सुपर जीएसटी सुपर सेविंग प्रोग्राम और वैजाग में CII पार्टनरशिप समिट में शिरकत की दावत भी दी। नायडू ने कहा कि वजीर आजम की शिरकत सरमायाकारों के लिए तरगीब का बाइस बनेगी। साबिक मरकजी वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को करनूल का दौरा करेंगे और पीएम मोदी का दौरा रायलसीमा के लिए एक बड़ा मौका है। उन्होंने बताया कि मोदी की क़यादत में जीएसटी इस्लाहात और रूस से कम कीमत पर ईंधन की फराहमी से आवाम को फ़ायदा पहुंचा है। टीजी वेंकटेश ने कहा कि रियासती हुकूमत नई सनतें और सरमायाकारी लाने के लिए मरकज़ के साथ ताउन कर रही है और करनूल में हाईकोर्ट बेंच और समर कैपिटल के क़याम के लिए भी काम जारी है। आवाम से अपील की गई है कि वो वज़ीर आज़म के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। प्रधानमंत्री जी 16 करनूल एरिया को आ रहे हैं। बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग भी रहेगा वो दिन, supporting to GST and taking the blessings of the Prime Minister, expecting about lakhs of 2 to 3 lakhs of people will be coming that day. And mainly
the benefits GST has given to the people. वो बहुत बेनिफिट है. 18% से 5% लाया है, 18% से some of the good 7.5 भी लाया है, 12% free 5% लाया है. ऐसा बेनिफिट्स ये at a time. Most of the countries who financial crisis रहने के टाइम पे हमारा देश वर्ल्ड में 4th से 3rd, 3rd से 2, 2 से 1 को जाना भागने में है. दिस इज बिकॉज ऑफ आंध्र प्रदेश के वजीर सनत टीजी भरत ने करनूल और आसपास के इलाकों के अवाम से अपील की है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की करनूल आमद को शानदार तौर से कामयाब बनाएं। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दौरा GST 2 पॉइंट और आगाही प्रोग्राम के हवाले से हो रहा है और करनूल के अलावा नंदियाल के अवाम के लिए एक बड़ा मौका है। तवक्को है कि प्रोग्राम में 3 लाख से ज़ायद लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के दौरे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये दौरा रायलसीमा की तरक्की में अहम संगमेल साबित होगा। सबको मालूम है, करनूल वासी लोग को सबको मालूम है कि 16th हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं करनूल को। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतना बड़ा सभा इधर कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 3 lakhs to 4 lakhs पीपल गैदर हो रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी है हमारा लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स मोदी साहब को दिखाना है, क्योंकि GST रिफॉर्म्स लेके आए। कौन भी आप देख लेंगे तो ऑलरेडी सेटल हुआ है सब्जेक्ट। GST सबको क्या रेट्स मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सबको मालूम है। फिर भी अभी कुछ भी आंदोलन कुछ भी नहीं था, बट रिवीजन करके बहुत कम करा। क्यों? कॉमन मैन को ये एडिशनल एडवांटेज आता, उसको बचने के लिए चांसेस ज़्यादा रहता करके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 16 अक्टूबर को करनूल के दौरे के सिलसिले में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज बीजेपी के रियासती चीफ PVN माधव करनूल पहुंच गए। माधव ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो वजीर आजम के अवामी जलसे के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं और NDA के लीडरों के साथ मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने खुद स्टेज और जलसेगाह का मुआयना किया और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत भी दी। మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కర్నూలు రావటం అంటే యావత్ రాయలసీమ అంతా కూడా ప్రజలందరూ కూడా హర్షాతిరేకాలుగా స్వాగతం పలకాలి అని చెప్పి ఆలోచన. కేవలం కూటమి సంబంధించిన పార్టీలే కాకుండా ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి రావాలని చెప్పి ఉత్సాహాన్ని చూపించిన నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏదైతే పండగ వరంగా ఏదైతే సూపర్ GST తీసుకురావడం జరిగిందో ఆ యొక్క GST సరళీకృత GST విధానం कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस रहनुमा प्रियंक खड़गे ने सरकारी इदारों में RSS की सरगर्मियों पर सवाल उठाया था। अब उनका कहना है कि उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स और नाजेबा पैगामात मौसूल हो रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन से उनका फ़ोन मुसलसिल बज रहा है, लेकिन ऐसी धमकियां उन्हें खामोश नहीं कर सकती। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों कॉलेजों में RSS की सरगर्मियों पर सवाल उठाने और उन पर पाबंदी लगाने की हिम्मत करने पर उन्हें और उनके ख़ानदान को गालियां दी जा रही हैं। खड़गे के मुताबिक इन्हें इस तरह की हरकतों पर कोई हैरत नहीं और अगर कोई समझता है कि वो उन्हें डरा कर खामोश कर देगा तो वो गलत है। मुझे पता नहीं कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है, बट यहाँ पे संविधान का मॉडल है कर्नाटका में। और ये जो मार्च पास कर रहे हैं लाठी लेके, ये जो गणवेश डाल के ऊपर नीचे करते हैं लोकेलिटीज में विदाउट परमिशन, ये सब बंद होना है। आपको करना है तो आपके घर में कीजिए, आपके नेताओं के घर में कीजिए, उनके फार्म हाउस में कीजिए, उनके फार्म लैंड्स में कीजिए। पब्लिक प्लेसेस में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट के मैदान में क्यों कर रहे हैं? और ये सिद्धांत और ये तत्व इतना अच्छा है तो बीजेपी के बच्चे क्यों नहीं है इसमें? बीजेपी के बच्चे, लीडर के बच्चे शाखा में क्यों नहीं पढ़ते हैं? शाखा में लाठी लेके क्यों नहीं घूमते हैं? गणवेश लेके क्यों नहीं घूमते हैं?
गौमूत्र क्यों नहीं पीते हैं, गौरक्षक क्यों नहीं बने, धर्म रक्षक क्यों नहीं बने? ये धर्म का नशा सिर्फ SC ST बैकवर्ड OBC के लिए है क्या? सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? कर्नाटक के बेंगलुरु से खबर है। रियासती वजीर प्रियंक खड़गे ने बताया कि रियासती हुकूमत RSS पर पाबंदियों के हवाले से तमिलनाडु मॉडल का जायजा ले रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और दिगर सरकारी जगहों पर RSS की सरगर्मियों को जारी रखना दुरुस्त नहीं। खड़गे के मुताबिक अगर RSS अपने प्रोग्राम करना चाहे तो वो निजी मुकामात, घरों या होटलों में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा कानून से बलातर नहीं है और सरकारी मिल्कियत को फिरका वाराना नजरियात के फरोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Honorable CM has instructed the Chief Secretary to have a look into this. So we'll see how it goes. But either ways, I don't think this kind of arrangement of RSS should be allowed in public places. Why it is necessary to ban them? Where have I told to ban RSS? I have told them they should not. They are using government colleges, government schools, government universities, government grounds, archaeological sites. For what? कर्नाटक बीजेपी के लीडर सी नारायण स्वामी ने प्रियंक खड़गे के बयान पर कहा है कि कांग्रेस RSS से खौफजदा है और कोई भी तंजीम RSS को शिकस्त नहीं दे सकती। उनका कहना है कि अपनी तंजीमी सलाहियतों में कमी के बाइस कांग्रेस फिक्रमंद है। See, when they are talking about the RSS, so they are afraid of RSS then. Because, see, in every nook and corner of this country, there is a RSS today. So that its power is so incalculable. It is so powerful. No other organization can defeat them. In that situation, बेंगलुरु में बीजेपी लीडर CN अश्वत्थ नारायण ने प्रियंक खड़गे के RSS पर तबसरे के जवाब में कहा कि RSS समाज के हर तबके के लिए काम करती है। उनका इल्जाम है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत हमेशा नफरत फैलाने में मसरूफ रहती है और बेबुनियाद इल्जामात लगाती है। नारायण के मुताबिक सरकारी स्कूलों या अवामी मुकामात पर RSS की सरगर्मियों को रोकने की कोशिश गैर मुंसिफाना है। All citizens have got right to make use of the public space. So legally, technically, they can't do it. And more so, RSS is a nation-building organization. They work for all sections of society. For them, humanity is everything. So this Congress government is always into hatredness with आंध्र प्रदेश में देही तरक्की के लिए दूसरे मरहले के प्रोग्रामों का आगाज होने वाला है। नायब वजीर आला पवन कल्याण ने कहा है कि इस मंसूबे का मकसद देही इलाकों को मुकम्मल तौर से तरक्की याफ्ता बनाना और गांव देहात की तस्वीर को बदल देना है। इस हवाले से पंचायती राज और देही तरक्की के आला हुक्काम के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास किया, जिसमें सड़कों की तरक्की, नए मंसूबों, मरम्मत, गौशाला और बुनियादी ढांचे के दिगर कामों पर उन्होंने हुक्काम की रहनुमाई की। सफाई के लिए मैजिक ड्रेन के मंसूबे पर भी तफसीली बात हुई। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आज जामा तालीम के जरिए विकसित भारत की तामीर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए चैलेंज और मौक़े के मौजू पर एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़िद हुआ। मुंसिफ टीवी इस प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर्स है। इस मौके पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर KM ज़ियाउद्दीन ने तारीफ़ी कलिमात के हैं, जबकि डॉक्टर शुदात अली कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा साबिक़ IPS ऑफिसर प्रोग्राम में मौजूद रहे। प्रोफेसर ने कलेदी खिताब किया, जबकि प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सिदारती खिताब किया। You are aware, so I don't go through those data, but I'm sure that you will agree that despite of all constitutional safeguards and state initiatives, we have very strong structural impediments. We have deeply rooted structural negligence.
we do carry and live with social stigma, digital gaps, and very hard, deeply rooted gender inequalities that persist in Indian society, and that too among Muslim society as well. And by having those concerns, this is very important for us to unravel those realities through the research people have done. For Indian Muslims, and indeed for all marginalized groups, this inclusive and reflective model of education is central to building a Viksit Bharat, one that preserves the moral fabric of society as Durkheim envisaged and cultivates critical consciousness. आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।